अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम आज सीटीजी डिस्कस करेंगे। सीटीजी का भी वो एक पहलू जिसमें हम उसका नॉन स्ट्रेस टेस्ट यानी मदर लेबर में नहीं है लेकिन बिफोर द लेबर अगर हम मदर की कोई फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग करते हैं तो उसको हम चेक करते हैं एंड दैट इज़ कॉल्ड नॉन स्ट्रेस टेस्ट। Non-stress test क्या है? The mother is not in labor, so we are monitoring the fetal heart rate pattern in the absence of uterine contractions. अगर uterine contractions आ रही होंगी, then it will be called contraction stress test. That there is a stress of the uterine contractions, and then we see the fetal heart rate pattern. But today we are focused on the non-stress test, also called NST. इसमें क्या होगा कि there are no uterine contractions but we are monitoring the fetal heart rate. So normal fetal heart rate कितना होता है? Normally it fluctuates from 120 to 160 beats per minute. और whenever the fetus moves, there is transient increase in the heart rate. उसकी physical activity के साथ coincide कर रहे हैं. To meet the physical activity, the fetal heart rate increases. Sometimes fetus multiple movements करते हैं, तो there are multiple times fetal heart rate temporarily increase करता है. These are called accelerations. अब ये जो accelerations हैं ये CTG equipment के ऊपर डिटेक्ट हो जाती हैं. CTG कैसे की जाती है? The mother lies on the bed with the two belts wrapped around her abdomen, and to these belts two sensors are applied. ये sensors क्या कर रहे होते हैं? One of the sensor is recording the contractions that is applied very close to the fundus of the uterus, and the other probe is monitoring the fetal heart rate. Usually that probe is applied on the area where we can expect the best fetal heart sounds. Also an event marker, it's a remote control device which is given in the hand of the mother. Whenever mother feels the fetal movements, she press a button. तो जैसे ही मदर को कोई बेबी की हरकत महसूस होगी तो वो एक बटन प्रेस करेंगी. बटन प्रेस करने से क्या होगा? एक एरो सा सीटीजी ट्रेस के ऊपर मार्क हो जाता है. दैट विल रिफ्लेक्ट कि मदर ने बेबी की हरकत महसूस की थी और जब बेबी की हरकत महसूस हुई तो उसके ऊपर एक इवेंट मार्क हो गया कि फीटल मूवमेंट हुई है. अब ये जो सेंसर्स लगे हुए हैं, दीज आर कनेक्टेड टू द सीटीजी मशीन थ्रू वायर्स, और ये फीटल हार्ट रेट और यूट्राइन कंट्रैक्शंस को सेकंड टू सेकंड बेसिस के ऊपर रीड करके सीटीजी मशीन को कांस्टेंट डाटा की स्ट्रीम जा रही होती है. और सीटीजी मशीन क्या करेगी? इसको एक ट्रेस की शक्ल में एक पेपर के ऊपर प्रिंट कर देगी. और इसके ऊपर क्या होगा कि fetal heart rate is plotted on the upper part of the trace and the uterine contractions are plotted on the lower part of the paper. और जो मदर ने अगर कोई fetal movements फील की थी तो वो उसके सेंट्रल पार्ट में उसकी मार्क्स आते जाते हैं एज ए एरो. Looking at certain CTG makes, CTG मशीनें बहुत बेसिक सी भी होती हैं, सिंपल सी हैं, like this one. There are certain advanced versions जिसमें डिस्प्ले के ऊपर और भी कलरफुल आ रहा होता है. And there are certain more advanced versions in which there are multiple parameters are recorded. Even twins होंगे तो ट्विन्स के हिसाब से दो सेंसर्स लग जाते हैं, तो दो फिटसेस की हार्ट रेट भी आ रहे होते हैं. एंड देयर आर सर्टेन डिवाइसेस सीटीजी मशीन्स which are also maternal monitors as well. So these are called feto-maternal monitors. और एक बहुत एडवांसमेंट है कि in a very busy advanced labor rooms where there are multiple laboring mothers are there, or there are multiple women who are for the fetal monitoring, so there are central networking monitors. स्टेशंस बन जाते हैं, हर एक लेबर रूम के अंदर एक एक सीटीजी मशीन होगी और थ्रू अ नेटवर्क दीज आर
connected to a central system. और हर एक CTG मशीन अपना अपना डाटा उसको ट्रांसमिट कर रही होती है. सो वन ऑब्जर्वर कैन साइमल्टेनियसली मॉनिटर मल्टीपल लेडीज एट अ वन गिवन टाइम. CTG में हम देखते क्या है? सो एक्चुअली वी लुक फॉर 4 थिंग्स ऑन ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट. हम अभी लेबर पेन्स की हम बात नहीं कर रहे हैं. वी आर लुकिंग एट द फीटल हार्ट साइड. सो व्हाट वी सी इज अब बेसलाइन फीटल हार्ट रेट. अब अभी हमने बताया कि नॉर्मल फीटल हार्ट रेट कितना होगा, 120 से लेके 160 के दरम्यान में फ्लक्चुएट कर रहा होता है. बाज़ का ये 110 तक भी चला जाता है, लेकिन यूजुअली वी एक्सपेक्ट 120 to 160 इज द नॉर्मल रेंज. एंड विद इन दिस रेंज द फीटल हार्ट रेट इज फ्लक्चुएटिंग प्लस माइनस 5 बीट्स. एट टाइम्स ये फीटल हार्ट रेट अगर सपोज 130 था तो कभी 125 हो जाएगा, कभी 130 होगा, कभी 135 होगा. सो दिस variation is called variability. And whenever there is a fetal movement which is either perceived or not perceived by the mother, but with fetal movement there are usually accelerations. Acceleration में क्या होगा, 10 to 15 beats का increment आ जाएगा on the baseline fetal heart rate. Before 32 weeks up to 10 beats is anticipated, but after 32 weeks of pregnancy usually 15 beats की acceleration एंटिसिपेट की जाती है. एंड दैट शुड परसिस्ट फॉर 10 to 15 सेकेंड्स और मोर. और साथ में हम CTG में देख रहे होते हैं कोई डिसलरेशन. डिसलरेशन मीन्स ड्रॉप इन द बेस लाइन फीटल हार्ट रेट. फ्रॉम द बेस लाइन फीटल हार्ट रेट जो चल रहा होता है, अगर उसमें से कोई डिप्स आ रही हैं, दोज आर कॉल्ड डिसलरेशंस. अभी हम आके उसकी कुछ इलस्ट्रेशंस देखेंगे. अ गुड CTG ट्रेस इज कॉल्ड अ रिएक्टिव ट्रेस. उसमें क्या होता है कि there is a baseline heart rate again between 120 to 160 प्लस माइनस 5 बीट्स की उसमें वेरिएशन आ रही होती है, और 15 to 20 सेकेंड्स के दौरान की एक्सेलरेशन भी आती हैं अबाउट 15 बीट्स की. सो विद इन अ 20 minutes trace there are 2 or 3 accelerations lasting 15 seconds or more and 15 beats per minute or more. And in a healthy reactive normal trace there shouldn't be any decelerations. Decelerations are always considered a pathological entity. अब हम थोड़े से CTG ट्रेसेस को देखते हैं कि कैसे होते हैं, नॉर्मल ट्रेस और थोड़े से पैथोलॉजिकल ट्रेस. ये जो आप ट्रेस ग्राफ पेपर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड CTG पेपर. CTG पेपर के ऊपर हम थोड़े से इलस्ट्रेशंस ड्रॉ करके दिखाएंगे कि इसमें नॉर्मल हार्ट रेट किस तरह फ्लक्चुएट कर रहा होता है, और एक्सेलरेशंस क्या होती हैं, डिसलेशंस क्या होती हैं, और वेरिएबिलिटी क्या होती है. तो अभी हम इसको देखते हैं. अब ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं, ये दिस इज़ एक्चुअली अ CTG पेपर. CTG पेपर के जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें जो अपर पार्ट ऑफ द ग्राफ है जिसमें ये एक कलर्ड बैंड भी शो हो रहा है, दिस इज़ फॉर ट्रेसिंग द फीटल हार्ट रेट. इसके अंदर फीटल हार्ट रेट का ग्राफ प्लॉट होगा. जो ग्राफ का लोअर पार्ट है, इसमें यूट्राइन कंट्रैक्शंस की ट्रेसिंग्स आती हैं. अगर तो कोई लेबरिंग पेशेंट होगी तो यहाँ पे इसकी कंट्रैक्शंस शो हो रही होती हैं. अगर लेबरिंग पेशेंट नहीं होगी तो उसकी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं आ रही. अभी चूँकि हम नॉन स्ट्रेस टेस्ट पढ़ रहे हैं, तो वी आर मोर कंसर्न अबाउट द फीटल हार्ट रेट, जो कि इस ग्राफ के अपर पोर्शन में शो हो रहा होगा. नॉर्मली CTG में हम जो फीटल हार्ट रेट का पैटर्न देख रहे होते हैं, उसमें जो पहली चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है बेस लाइन फीटल हार्ट रेट. अब फीटल हार्ट रेट नॉर्मली कितना होता है? नॉर्मली ये 120 से 160 के दरमियान होता है. सो नॉर्मली फीटल हार्ट रेट 120 to 160 दिया जाता है. 110 तक भी बाज़ का एक्सेप्टेबल है, 180 तक भी चला जाता है, लेकिन नॉर्मली ये 120 से 160 के दरमियान में फ्लक्चुएट कर रहा होता है. सो एक फीटस का एक एट अ गिवन टाइम एक बेसलाइन फीटल हार्ट रेट चल रहा होता है. बाज़ का 140 में होगा, बाज़ का 150 में होगा, बाज़ का 125 पे चल रहा होगा, 130 पे चल रहा होगा. सो कोई ना कोई उसका एक बेसलाइन हार्ट रेट होता है.
अब इस हार्ट रेट की जो नॉर्मल रेंज है इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आ रही होती है. सो सेकंड थिंग इज़ वेरिएबिलिटी. वेरिएबिलिटी मीन्स कि जो एक इसका बेसलाइन फीटल हार्ट रेट है, सपोज 140 था, तो वो 140 नहीं रहता, थोड़ा बहुत +-5 होता रहेगा. कभी 135 हो जाएगा, कभी 145 हो जाएगा, रहेगा 140 के आसपास ही. सो इसकी एक वेरिएबिलिटी आती है. अब हम ड्रॉ करके देखते हैं. सपोज ये 140 था, तो अब यहाँ पे फीटल हार्ट अपनी इस नॉर्मल रेंज में 140 के आसपास इस तरह से ड्रॉ हो रहा होगा. यानी 140 है तो उसके आसपास इसकी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आ रही होती है. सो एग्जैक्ट 140 नहीं होगा, कभी थोड़ा सा कम, कभी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा. सो दिस इज़ वेरिएबिलिटी. और ये किसके अंदर फ्लक्चुएट कर रहे हैं? विद इन द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट. सो बेसलाइन हार्ट रेट इज़ अराउंड 140. नेक्स्ट थिंग इज़ एक्सेलरेशन. अब नॉर्मल फीटल हार्ट एकदम एक्सेलरेशन में चला जाता है यूजुअली जब फीटस की कोई मूवमेंट होती है. सो व्हेन एवर देयर इज़ अ फीटल मूवमेंट, कहीं यहाँ पे आके फीटल मूवमेंट आई तो साथ ही थोड़ी देर के लिए फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेशन में चला जाएगा. यूजुअली 15 बीट्स एक्स्ट्रा हो जाती हैं. जहाँ 140 था तो वो 155 पे चला गया, 160 पे चला जाएगा, 15 सेकेंड्स के लिए रहेगा एंड देन इट रिटर्न्स बैक टू द नॉर्मल रेंज. थोड़ी देर गुजरी, अगेन फीटल एक्सेलरेशन, थोड़ी देर रहेगी एंड देन इट रिटर्न्स बैक टू द नॉर्मल. यूजुअली जैसे ही कोई मदर को फीटल मूवमेंट होगी, there is an acceleration. Acceleration means there is plus 15 beats per minute. So normal baseline fetal heart rate जो चल रहा होता है उसमें 15 beats एक्स्ट्रा हो जाती हैं. वेरिएबिलिटी में ±5 beats पर मिनट ये फ्लक्चुएशन आ रही होती है. सो एक नॉर्मल ट्रेस में एक बेसलाइन फीटल हार्ट रेट होता है, वेरिएबिलिटी होती है, एक अच्छा फीटल हार्ट रेट जो उसमें एक्सेलरेशंस आएंगी. थोड़ी थोड़ी देर बाद बेबी का हार्ट रेट फास्ट होगा, तकरीबन 20 मिनट्स में 2 या 3 एक्सेलरेशंस आ जाती हैं. सो इस तरह का ट्रेस जिसके अंदर बेसलाइन फीटल हार्ट रेट इज़ विद इन द नॉर्मल रेंज 120 to 160 के दरमियान में फ्लक्चुएट कर रहा है, एक्सेलरेशंस आ रही हैं. Acceleration means there is an increase in baseline fetal heart rate of 15 beats per minute or more, and that should persist for 15 seconds. So accelerations क्या होंगी? Plus 15 beats per minute for 15 seconds at least. And usually deceleration means कि हार्ट रेट कम हो जाना. नॉर्मली बेसलाइन फीटल हार्ट रेट से एक्सेलरेशंस आती हैं. यूजुअली देयर आर नो डिसेलरेशंस इन अ नॉर्मल सीटीजी, नॉर्मल रिएक्टिव सीटीजी. सो दिस काइंड ऑफ ट्रेस इज कॉल्ड रिएक्टिव ट्रेस. एंड दिस इज वेरी रीअश्योरिंग. इस तरह का ट्रेस बहुत तसल्ली देता है. सो normal CTG with a reactive trace, there is a variability of ±5 beats. There are 2 or 3 accelerations. Usually these accelerations coincide with the fetal movements. That's about the reactive trace. Now we are moving to another type of trace in which there is loss of variability.
अब हम थोड़ा सा रूटीन से हट के ट्रेस देखेंगे विच इज़ एन एबनॉर्मल ट्रेस। सो बेसलाइन फीटल हार्ट रेट यूजुअली 120 से 160 में रहेगा। वेरिएबिलिटी जो है जैसे हमने कहा था इट शुड बी ±5। सपोज अगेन फीटल हार्ट रेट इज़ अराउंड 140, लेकिन वो 140 पे ही चला जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, सीधा सीधा जा रहा है, कोई एक्सेलरेशन भी नहीं आ रही इसके अंदर और ना ही कोई सिग्निफिकेंट वेरिएशन है। कॉन्स्टेंटली 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 वो एक ही हार्ट रेट चला जा रहा है। 20 मिनट्स का हमने ट्रेस ले लिया और विद इन 20 मिनट्स नाइदर देयर वाज एनी maternal fetal movement and the fetal heart rate is constantly at 1 point. There is no variation. So this is called loss of variability. Normally there should be ±5 beats per minute and accelerations with accelerations. इसमें क्या है, कोई एक्सेलरेशन नहीं आ रही, फीटल हार्ट रेट एक ही रेंज में चला जा रहा है, ±1-2 तो हो रहा है लेकिन वेरिएशन नहीं आ रही जैसी एक्सपेक्टेड है या जिसे नॉर्मल लिया जाता है। अब लॉस ऑफ वेरिएबिलिटी कैन बी ड्यू टू स्लीपिंग ऑफ द फीटस, वो स्लीपिंग फेज में चला गया, लेकिन स्लीप फेज बहुत लंबा नहीं होता है, इवेंचुअली इट शुड बिकम रिएक्टिव अगेन। लेकिन इसमें क्या होगा, स्लीपिंग फेज में होगा तो देयर इज़ लॉस ऑफ वेरिएबिलिटी और इट कुड बी एन अर्ली साइन ऑफ डिस्ट्रेस। कि इसकी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंटरप्ले नहीं कर रही, बस वो एक ही रेट पे हार्ट रेट चल रहा है। द फीटस इज कंजर्विंग द एनर्जी, मे बी उसको अर्ली डिस्ट्रेस डेवलप हो रही है, वो अर्लियर हाइपोक्सिया में है, हाइपोग्लाइसीमिया में है, द फीटस इज कंजर्विंग द एनर्जी और कुड बी ड्रग इफेक्ट। सर्टन ड्रग्स जो स्लीप इंड्यूसिंग हो सकती हैं like benzodiazepine if mother has taken some tranquilizer or if she has taken some narcotic, or sometimes antihistamine drugs they cause sedation, so a sedated fetus uska bhi loss of variability aa jayegi and this kind of trace is not a normal trace, it's a trace जिस पे तशवीश शुरू हो जाती है। so this kind of trace is kind of loss of variability, या at times उसको reduced वेरिएबिलिटी भी बोल देते हैं। In such circumstances, the team should not overreact. Rather, the cause should be investigated. Maybe sleeping phase है, maybe कोई drug का hangover है, तो ऐसे में at times the CTG is repeated after some time. मदर को लेफ्ट लैटरल करा देते हैं, उसको हाइड्रेशन इम्प्रूव कर देते हैं, उसको कोई थोड़ा सा कोई हाइपोग्लाइसीमिया है तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। एट टाइम्स ऑक्सीजन भी मदर को इनहेल करा देते हैं और उसके बाद सीटीजी रिपीट करके देखते हैं। अगर उसके बावजूद भी सीटीजी रिएक्टिव में कन्वर्ट नहीं होती तो इट शुड बी फर्दर इन्वेस्टिगेटेड कि व्हाई देयर इज़ अ लॉस ऑफ वेरिएबिलिटी। Now we are going to discuss another abnormal, a very pathological trace in which the fetus develops decelerations. Deceleration means there is a fall in the heart rate. Normally there should be accelerations. अब इसमें क्या होगा कि सपोज एक बेसलाइन फिटल हार्ट चल रहा था but there is sudden drop in the heart rate. It stays there for some time, variably heart rate slow हुआ, then at times it returns to normal, and repeatedly there are events in which there is bradycardia, heart rate drops to 90,
sometimes 70. It stays there for some time, and maybe with some maneuvers it returns back. अब ये हार्ट रेट में वेरिएबिलिटी ज़रूर है, लेकिन इसमें डेमोस्ट्रेट में कर रहा हूँ हाउ द डिसलेशन लुक्स लाइक. So these are decelerations, and decelerations are always considered a sign of fetal distress. Distress में usually there is profound hypoxia. Fetus is hypoxic. हाइपोक्सिया की वजह से एसिडोसिस हो रही है और उसके नतीजे में ब्रेडिकार्डिया हो रहा है फीटस को. एंड दिस इज़ अ वेरी डेंजरस साइन. अ टाइमली एक्शन नीड टू बी टेकन दैट fetus who is having decelerations must be treated on a very emergency basis. Causes क्या हो सकती हैं? At times usual cause जो है there is cord compression. Umbilical cord is getting compressed. वो कब compress हो सकती है? When there is severe oligohydramnios. Amniotic fluid के अंदर cord बड़ी अच्छी suspended होती है, but if there is severe oligohydramnios, the umbilical cord may get compressed between the uterine wall and the body of the fetus. इसके नीचे आके बेबी के अपने नीचे आके cord compress हो गई, तो venous return from the placenta to the हार्ट थ्रू द अम्बिलिकल वेन इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड. हार्ट को वीनस रिटर्न नहीं आ रही, उसकी कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है. अदर कॉज जो है कि इफ़ देर आर टाइट लूप्स ऑफ कॉर्ड अराउंड द नेक, उसमें भी अल्टीमेटली कॉज कॉर्ड कंप्रेशन आ रही है. थर्ड कॉज कुड बी एक्सट्रीम यूट्रोप्लेसेंटल इंसफिशिएंसी. प्लेसेंटा एडिक्वेटली ऑक्सीजनेट नहीं कर पा रहा द ब्लड विच इज़ कमिंग टू द प्लेसेंटा for oxygenation. So hypoxic या less oxygenated blood is returning to the fetus और fetus उस stress को cope नहीं कर पा रहा, तो ऐसे में भी decelerations आ रही होती हैं. So decelerations should always be timely identified and timely managed. बहुत लेट करेंगे तो हो सकता है कि ये decelerations ब्रेडिकार्डिया में जाते 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 कार्डियक एक्टिविटी स्टॉप हो जाए, इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाए. So decelerations should be investigated on a very top priority. Thank you very much for attending this tutorial. If you have any questions, please feel free to ask or send me an email. Thank you. Allah Hafiz.